discussed that nature and that remains the shape that has no starting and ending point, and that it uses diameter or area to calculate the size. फिर हमने कहा था एक पाइथागोरस थ्योरम है इस इक्वेशन को जब हम ड्राइव करते हैं तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन आ जाता है दैट पॉलिनोमियल इक्वेशन इज बेसिकली कंसीडर्ड एज द बेसिस सर्किट और उस पॉलिनोमियल इक्वेशन में चार प्रॉब्लम आती है तो हमारा पॉलिनोमियल मैंने ये भी सिखाया इसके बाद मैंने सर्किट बनाया हमने सर्किट की एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करी उसको कहते हैं सेंटर पॉइंट whenever we draw a circle along with other properties we see the location of the circle is considered as the center point or in the words the circle is calculated what determine place of the center of that circle जिसको हम x c and y c के भी निरूपण करते हैं This basically means the center point. जहाँ पे center point होगा, with respect to that center point, उसके radius के तरफ वो circle करता है. And in fact, in value, if C की कोई value नहीं है in terms of location, the value of the center point. The screen को cover जब हम circle बनाते हैं, that either उसके center point and that is that center point is that center point in some books is known as center. Some books it is known as center. In some books we refer to it as anchor. Physics में इसको हम center of mass भी कहते हैं या center of gravity भी कहा जाता है. ठीक है. In fact, pivot point भी physics में भी refer किया जाता है. These are very simple terms that refer to basically center point any particular object. Not only is it any particular object. आगे हम polygon भी पढ़ेंगे तो उसमें multiple sides. फिर again the same concept goes for that. Center point कहने, pivot कहने, anchor कहने, center of mass कहने, center of gravity कहने. Basically all correspond to one point that represents the entire object. Circle के हिसाब से उस पॉइंट का मतलब करता है सेंटर जो कैलकुलेट होता है xc एंड yc के हिसाब से ये वो पॉइंट है जब हम कंपास ड्रॉ करते हैं तो कंपास का जो पहला लेवल जब पेपर पे रखते हैं दैट बिकम द सेंटर पॉइंट और फिर उस सेंटर पॉइंट के गिर्द हमारे पास सर्किल जो है उस पर्टिकुलर रेडियस का वो ड्रॉ होता है ठीक इस सेंटर पॉइंट को अगर इक्वेशन में रख के हमारे पास एक जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर r स्क्वायर ये स्टैंडर्ड आप इसको लिख रहे हैं या रखो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y माइनस x स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर तो इस सेंटर पॉइंट से मुझे इसका फार्मूला निकालना है ये होगा x ये होगा xc तो ये डिफरेंस हमने निकाला यहाँ पे इसी तरह से y ये होगा yc ये डिफरेंस हमने निकाला है इस पॉइंट से लेके इस सेंटर तक का डिफरेंस कितना है तो वो डिफरेंस हमें पता है कि यहाँ पर इंस्टेड ऑफ y2 we have to use of circle y square फिर हमें पता है कि मैथमेटिकली इस इक्वेशन से y2 के मान का आइडेंटिटी मिला जस्ट लाइक इन लाइन we calculate the value of y और x को इंक्रीमेंट कराते चलेगा उसी तरह से अगर मैं इस इक्वेशन को यूज करूं मेरे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाती है इसमें अंतिम भाग और फिर x minus xc now what this basically means that this equation becomes little bit complex now what this basically means that this is basic polynomial equation for a circle. This is the basic polynomial equation that we derive from Pythagoras theorem and we reach to this point. It is only scientific value. This equation को इस equation का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इस इक्वेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ जाता है that this equation is not very effective or in other words if I convert this into an algorithm
If I convert this into an algorithm में मैंने कहा कि मेरे पास algorithm में मेरे पास आएगी इस algorithm को अगर मैं कोड कराने क्या तो remember last time like I said that assumingly circle is calculated in degrees and circle has 360 degrees. ठीक, you calculate circle में 360 degrees बनते हैं. Assumingly 1 degree is equal to 1 pixel. Assume करते हैं कि 1 डिग्री 1 पिक्सल के बराबर है तो उस हिसाब से ये स्टेप मुझे 360 दफा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. तब कहीं जाके मुझे पूरे 360 पिक्सल्स मिलेंगे. Assumingly that means कि मुझे 1 डिग्री स्टेप बहुत ज्यादा दफा करना पड़ेगा. तो because this points under root power plus minus तो this is computationally heavy, ज्यादा ऑपरेशंस करने पड़ रहे हैं. under root की computationally heavy operation है इस compared to plus minus तो प्रोसेसर को थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी. because under root है तो floating point भी आएगा हमारे पास. floating point की वजह से प्रॉब्लम ये आएगा now this algorithm becomes very inefficient. This algorithm becomes very inefficient because of these 4 or 5 reasons. First, it has to be executed multiple times, 360 degrees. Second, it involves computation. Third, under root. The root की वजह से प्रोसेसर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. कंप्यूटर बेसिकली प्लस माइनस को बड़े अच्छे तरीके से करता है. मल्टीप्लाई भी बहुत अच्छे तरीके से करता है. डिवीजन के बाद के जो ऑपरेशन है उसमें प्रोसेसर को थोड़ी जान ज्यादा लगानी पड़ती है. ठीक है, बेसिकली बहुत है हमें पता भी नहीं चलता सेकंड्स क्यों लगता है नाइनो सेकंड्स क्यों लगता है और नाइनो सेकंड्स भी प्लस ज्यादा खाली. ठीक, क्योंकि अगर तो अपनी प्रोडक्ट में कॉम्प्लेक्सिटी जरूर नहीं पड़ती. तो क्या है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है इसलिए हेवी है. Third, because this is able to answer the root का decimal values भी आ सकता है. Floating points, and we all know that processor floating points को दो अलग-अलग memory locations में save करते हैं. One before the decimal, one after decimal. They are saved separately on memory, then they are fetched separately and then combined together and presented to the user. Hence, you processor को double operations करने पड़ जाते हैं. इन वजूहात को बिनाकर पहले ये algorithm efficient नहीं है. ये algorithm मुनासिब नहीं है. तो सबसे बड़ी जो एक वजह ये है कि जब इसका सर्किल का पॉइंट्स बनेंगे, पिक्सल के दरमियान में गैप आ जाएगा. कहीं-कहीं 3 पिक्सल इकट्ठे बनेंगे, फिर 1 पिक्सल जो सर्किल बनना शुरू होगा हमारा तो सर्किल में इस तरह से पिक्सल्स में गैप आ जाएगा. तो इतना सब करने के बाद भी इतनी सारी चीजों की इजाजत देने के बाद भी प्रॉब्लम है कि दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन क्रिएट्स प्रॉब्लम. ठीक, इसीलिए इस एल्गोरिथम का प्रॉब्लम लाइक प्रॉब्लम मैं इसको डिस्कस करूंगा. हाउएवर इसका एल्गोरिथम जो है मैंने जरूर डिस्कस किया हुआ है, तो स्लाइड्स में भी है और आपके कोड में भी, जिसका एल्गोरिथम बना के जरूर देखें. ट्राई टू क्रिएट एल्गोरिथम फॉर दैट. ठीक, फिर आ जाते हैं हमने कहा क्या इसके बाद में क्या किया जाए. तो फिर मैथमेटिशियंस तो सिंप्लीफिकेशन है. हमने सर्किट बनाया है Assumingly हमने सर्किल बनाया, फिर हमने कहा कि पहले सर्किल को ड्राइव करो 2 वोल्ट से अगर ये स्विच के 90 डिग्री और 180 डिग्री this becomes 270 this becomes 360. This is not x, this becomes I, this is minus x, this is minus y. This one is correct. उन्होंने सर्किल को हम रेडियल डिग्री से कर रहे हैं. फिर हमने कहा जब सर्किल को मैंने रेडियल में करना तो पता ये चला कि ये चारों बराबर इक्वल प्रोपोर्शंस हुए. सर्किल की यूनिफॉर्म है, स्टार्टिंग एंडिंग में नहीं रेडियल या रेडियस या डायमीटर के लिए बराबर होना चाहिए किसी भी पॉइंट से. यहां से लेके इस पॉइंट तक रेडियल डायमीटर बराबर होगा. इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डायमीटर बराबर. अगर इस एलिमेंट्स को हम रेडियस बराबर तो इसका मतलब ये पार्ट इसके अंदर 90 डिग्री ये हमने कहा कि चारों पार्ट बराबर बिकॉज दिस फोर आर इक्वल into furthermore 8 pieces based on 45 degrees of separation. It is 25 to 25 25 and 25.
इन 45, 45, 45 के हमने 8 पीसेस किए, जिसको हमने कहा these are 8 octaves या quadrants of the 8 octaves या quadrants। कुछ बुक्स में octet वर्ड कॉमनली रेफर किया जाता है, कुछ में quadrants कॉमनली रेफर किया जाता है। ठीक है, octet ऑक्टेट दूसरा ऑक्टेट तीसरा ऑक्टेट या एक क्वाड्रेंट दूसरा क्वाड्रेंट तीसरा क्वाड्रेंट। तो सर्कल को उन्होंने हम 8 इक्वल क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करके फिर कैलकुलेट करते हैं, हमारी कैलकुलेशन आसान होता है। कैलकुलेशन कैसे आसान होती है? फॉर एग्जांपल हमने कहा कि 45 इस सारे के सारे आपस में इक्वल बराबर है। इस इक्वल बराबर का अगर मैं अगर मैं इस एक को कैलकुलेट करूं, आई शुड बी एबल टू ऑब्टेन द रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स। हमने कहा दिस इज x, दिस इज y। हमने कहा कि लेट्स अज्यूम दिस इज x, दिस इज y। If this is x, this is y, then what we need to do is we say अगर इसको मुझे मेरा करना है यहाँ पे this becomes y x। ये मेरे पास बहुत से आ रही है, मतलब ये अगर इसकी वैल्यू को बदलना है, इसकी वैल्यू को बदलना है, यहाँ पे लगेगा वैल्यू वही यूज की मैंने, मुझे वैल्यू दोबारा कैलकुलेट करने की नौबत नहीं है। जो लॉजिक बनी वो लॉजिक ये बनी कि मुझे वैल्यू को दोबारा कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, मुझे सिर्फ उसको फ्लिप करना पड़ा। वैल्यू को दोबारा में कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, कैलकुलेट सिर्फ वैल्यू का था। पहली दफा शुरुआत यहाँ से क्यों की? क्योंकि स्कैन कन्वर्जन में जब रो का रो डिजिटल का पिक्चर बनते हैं तो ये पहला पिक्चर आता है। फिर अपने पास इसको भी मुझे डिजिटल करना है इस साइड में, व्हाट वी नीड टू डू इज this becomes minus x positive y, this becomes y comma minus x। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वाड्रेंट आ जाता है, this becomes minus y minus x, this becomes minus x minus y। Similarly, we say now we go to positive, we are also x comma minus y minus y comma minus x। These becomes 8 quadrants of my circle। एक quadrants को अपने यहाँ से लग जाते हैं, quadrants को यूज करते करेंगे। If I try to calculate for it, I would say divide my circle x comma y। अगर इसका हम एल्गोरिथम लिख लेंगे, हम लिखेंगे सर्किल एक फंक्शन बनाया, एक x और y की वैल्यू जो पहली वैल्यू होगी कैलकुलेट, फिर हम करेंगे नॉट पिक्सल x comma y, अलग अलग पिक्सल प्लॉट कर, उसके बाद डॉट पिक्सल y comma x दूसरा कॉम्पोनेंट में, फिर हमने कहा डॉट पिक्सल माइनस x comma y तीसरा कॉम्पोनेंट। इसी तरह से I will write all the options of minus y x equals minus x minus y equals x over minus y and minus y over x। That basically said कि अगर आपके पास एक पिक्सल की वैल्यू है, आपने इस सॉल्यूशन को सॉल्व करना है, उसको उसी पिक्सल की वैल्यू पास करना है। वो पिक्सल की वैल्यू कौन सी आएगा? एक पिक्सल की वैल्यू आएगा, उसको 8 कंपाउंड कर देते हैं इस 8 क्वाड्रेंट के साथ। Hence we only calculate one pixel, we figure the value to middle and definite। इसी तरह से if I calculate this becomes 1 pixel, 2 pixel, 3 pixel, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मैंने कहा for drawing the first quadrant I need 9 pixels। That basically means अगर for example मैंने कहा ये सर्किल है, इसमें मुझे 9 पिक्सेल्स रखने, इस पहले क्वाड्रेंट के लिए मुझे 9-10 पिक्सेल्स चाहिए, मैं सिर्फ 9-10 स्टेप्स करूंगा बस, बाकी इस फंक्शन में हर स्टेप के बाद कॉल करता जाऊंगा।
एक दफा कॉल हुआ उससे 800 फिर दूसरी दफा कॉल हुआ उसमें रीजन को 800 की तीसरी रीजन को 800 की दूसरी रीजन को पांचवी को छठे को सातवीं को पहले भी पूरा सर्कल आपका बना। आपने कैलकुलेशन के साथ में सिर्फ ये बहुत अच्छा ठीक तो वी कैलकुलेट रीजन 1 रीजन 2 रीजन 3 रीजन 4 रीजन 5 हर रीजन को कैलकुलेट करने की बात यहां तक कल हमने डिस्कस भी किया था आप समझ में परफेक्ट। सो नाउ वी मूव टू द एक्चुअल एल्गोरिथम कॉल्ड ब्रेसन-हैम। ठीक है now whenever we use ब्रेसन-हैम एल्गोरिथम एल्गोरिथम कहता है कि भाई मैं पूरे सर्कल को कैलकुलेट नहीं करूंगा क्योंकि बात वाज़ेह हो गई, मुझे सिर्फ एक क्वाड्रेंट को कैलकुलेट करना है, एक ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट करना है। जब मैंने एक को कैलकुलेट करके आपको उसकी एक्स वाई की वेक्टर्स की वैल्यू दे दूं आपको उसको बस फंक्शन में डाल के मैनेज करना है ठीक है कोई मसला नहीं। अब जैसे हमने लाइन को सॉल्व किया जब हमने लाइन कवरेज की तो लाइन के साथ हमको मान लिया कि ये लाइन डिवीजन यहाँ पर आ गई इसको हमने कैपिटल डी और कैपिटल डी को आप इस फॉर्म में हो गया। जब लाइन बनाई तो लाइन के साथ मसला ये आ रहा था कि उसकी वैल्यू दो पिक्सेल से ज्यादा है एंड इफ वैल्यू इज बिटवीन टू पिक्सेल्स नाउ व्हिच पिक्सल शुड बी ऑफ ये लाइन के साथ प्रॉब्लम एग्जैक्टली सेम मसला सर्कल के साथ भी। तो जब मैं सर्कल बना रहा हूं तो हो सकता है मेरी लाइन में दो पिक्सल से ज्यादा में आ गई ये मेरे पास का पिक्सल नहीं हुआ सेम प्रॉब्लम सेम प्रोसीजर पहली चीज इसीलिए मैं ब्रेसन-हैम को दोबारा कर रहा हूं। तो अगर लाइन का समझ में नहीं आया तो ब्रेसन-हैम सर्कल का समझ में आ गया तो लाइन का समझ में आ गया, अगर लाइन का समझ में आ गया तो सर्कल दोनों सेम एल्गोरिथम दोनों की टेक्निक सेम है सिर्फ हजरत की जो है उसको मैंने मुख्तलिफ किया है बाकी सब चीजें सेम ठीक। तो ओनली डिफरेंस बिटवीन सर्कल The only difference between circle and line is the value of the character. सिर्फ उसकी वैल्यू को मैंने जरा तब्दील किया है अदरवाइज द प्रोसेस द कॉन्सेप्ट द लॉजिक इज एग्जैक्टली सेम द एल्गोरिथम इज एग्जैक्टली सेम। तो कैलकुलेशन में तीन पैरामीटर हमने सर वेरी किया ठीक है पर उसको करने के लिए दो अभी अभी हमने पाइथागोरस पढ़ा इससे भी हमने देखा कि सेंटर पॉइंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट करता है सर्कल के अंदर और जब हम सेंटर इंक्लूड कर रहे हैं तो आंसर एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी बहुत है इनका सब अपना स्थिति की यूज करते हैं तो दैट्स व्हाट हाउ टू डिफाइन हाउ टू ऑब्जेक्ट टू वेरियस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इसके बाद और सिंपल मैथड कहा कि लेट this x is equal to x or the center where the bracket will be which is this minus c also is सिंप्लिसिटी सेक के लिए उसको आप कहीं और सिर्फ origin word का मतलब ये when I draw the circle, this is my x and y axis. This point है, अगर ये x, ये minus x, ये y है, ये value is more than zero consider करते हैं. In our graph theory, this point is considered as 0, 0. This point is considered as origin. इस origin को सर्कल का सेंटर तस्वीर करो. ठीक कि आप जब सर्किट की कैलकुलेशन कर रहे हैं पूरा समाधान मिल जाता है तो आप एक्सपेक्ट और सेंटर में सेंटर ऑफ इशू जो आपने एक्सट्रीम ओरिजिन पर करना है इसका सबसे बड़ा फायदा ये है ये ओरिजिन हमेशा इसका पहला जो एल्गोरिथम में हमें फायदा मिला वो फायदा ये था कि दिस एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली अलाउड अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सेंटर पॉइंट। तो कॉम्प्लेक्सिटी घट हो गई पहली चीज हुई ठीक जब सेंटर पॉइंट इज ऑलवेज एन एलिमेंट
assumingly we'll use the values of xc and yc. Second step, और अगेन प्रॉब्लम एग्जाम में भी जब मैं दूंगा मैं इसी चीज को अज्यूम करने में दूंगा कि यू विल अंडरस्टैंड xc is 0, yc is 0, तो मेरे इक्वेशन पुट करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाता है। सेकंड चीज इसमें कहीं कि भाई अब आ जाते हैं x और y और तीसरा पैरामीटर है रेडियस। I need these three values. Why? Because whenever I draw a circle, I need the value of pixel. ये पहला पिक्सल होगा और हमें पता है कि पिक्सल को हम हमेशा स्क्रीन पे x और y एक्सिस के हिसाब से रिप्रेजेंट करना है। हर पिक्सल x y एक्सिस में उसका चाहिए, मतलब एक एडिशनल प्रॉपर्टी है C++ में जो यूज करते हैं, दैट्स एन एडिशनल प्रॉपर्टी। फिलहाल मुझे इस पिक्सल का x और y वैल्यू चाहिए। अगर ये वैल्यू होगी तो मैं सिर्फ कर चला पाऊंगा। Why? Because again these are also known as incremental algorithm. The value is here. जैसे ना we are considered as an incremental algorithm. Incremental का मतलब ये मुझे पहली वैल्यू पता होगी तो मैं अगली वैल्यू पे जाऊंगा, मुझे पहली वैल्यू पता होगी तो मैं अगली वैल्यू पे जाऊंगा। अगर x की प्रीवियस वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए मैं अगली वैल्यू को बात करूंगा तो मुझे x की नई वैल्यू मिलेगी। This is what increment means. कि पहली वैल्यू x की उठाओ, उसमें प्लस वन करो, फिर अगली वैल्यू को वापस x में असाइन करके फिर उसी को इस्तेमाल करते चलो। यहाँ भी वही चीज। उससे पहले आगे बढ़े मुझे पहली वैल्यू x और y की चाहिए, मुझे x और y की वैल्यू। सेकंड ऑब्वियसली सर्कल है, ओरिजिन तो हम जीरो कर चुके हैं। सर्कल की सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसकी रेडियस। तो आया रेडियस आपको गिवन होगा या डायमीटर गिवन होगा? अगर मैंने डायमीटर दे दिया diameter d is equal to 10, इसका रेडियस क्या होगा? r is equal to 3 divided by 5। अगर मैं कहूँ radius is equal to 20, the radius is equal to 20, तो इसका diameter कितना है? Because radius is diameter 20 larger, क्योंकि डायमीटर फुल और रेडियस इसका आधा। अगर रेडियस एक है तो डायमीटर उसका डबल ऐसा करता है। तो हमारे पास पूरा बात करते हैं रेडियस के साथ। अब ये तीन प्रॉपर्टी कैसे निकालें? ये तीन चीजें मैं कैसे निकालूं? प्रॉब्लम में एग्जाम में मैं सिर्फ आपको रेडियस बताऊंगा कि ड्रॉ सर्कल यूजिंग और रेडियस कैलकुलेशन के हिसाब से अंडर 50 में वैल्यू करता है तो आप जल्दी भी होता है, तो 1.5 घंटा लग गया सिर्फ सर्कल के बाहर पॉइंट निकालने में। तो मैंने कहा रेडियस उसका है 5, सर्कल बनाओ, एक्स और वाई की वैल्यू आपको नहीं देते, क्यों? मुझे इक्वेशन इस्तेमाल ही नहीं करता। इक्वेशन कहता है कि एलिमेंट को डूब जाए, इसका मतलब ये जो पॉइंट है एक्स और वाई का एग्जांपल, इसमें एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हमने कहा ये ऑरिजिन, इस ऑरिजिन को हमने 0 0 तस्वर किया और तस्वर के ऑरिजिन हमेशा 0 0 ही होता है। तो हमने कहा कि सर्कल को तस्वर करो, हमको एलिमेंट को आप 0 0 एक्सिस और सिंगल पॉइंट इस एक्सिस। फिर एक बात आप मजा से रखें, फिर जब मैंने सर्कल बनाया, सर्कल को जब फिगर को ड्रॉ किया तो ये एक्स वाई की वैल्यू इस पॉइंट का एक्स वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। ऑटोमेटिकली जो पहले पिक्सल की एक्स वैल्यू है वो 0 हो गई। क्यों? मुझे बात हुई मेरे पास फिगर आ गई, इस रिलेटेड पॉइंट मैंने कहा कि ये 0 है, y को 0 है, इस पॉइंट का वैल्यू क्या होगी? x क्योंकि x को उसी लाइन पर वर्टिकल हो जाता है, तो ये वर्टिकल x को फिर उसी पॉइंट पर हम लोग x की वैल्यू अगर कोई लोग ये 2 है और यहाँ पे मैंने पॉइंट बनाया तो x की वैल्यू क्या होगी? तो क्योंकि हम सेकंड पॉइंट को उल्टी करते हैं और सभी का पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये है, इसका कन्वर्जन प्रिंसिपल के हिसाब से पहला पॉइंट हमने ये सेलेक्ट किया, ये कुछ प्रिंसिपल के तहत है।
ये तुक्का नहीं मारा, कंसिडर नहीं किया। उस पॉइंट के तहत इसके कन्वर्जन में क्योंकि पहला बिजनेस 2 बार होगा, ये आता है हालांकि हम कुछ और भी कर सकते हैं। इसने कहा ये तो ठीक x of the first pixel again, x of first pixel would automatically be set to 0. Why? Because when you started from origin of x की वैल्यू 0 है, तो vertically जब आप पॉइंट क्रॉस करोगे तो ऑटोमेटिकली 0 से स्टार्ट होगा। स्टैंडर्ड क्लास में x is 0 हुआ, रिजल्ट खत्म। y वैल्यू क्या होगा? अल्टीमेटली मैंने कहा कि जो रेडियस है वो मेरा नाम है y. So I said that the radius of my circle is 5. ये मैं आपको गिवन दे दूं, इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मैंने गिवन दी। तो मैंने कहा प्रॉब्लम वुड बी draw a circle using with radius 5. That's it. ठीक, तो रेडियस 5 के हिसाब से हमने सर्कल को कैलकुलेट किया। हमने कहा यार ये रेडियस है मेरे पास। अब इस रेडियस के हिसाब से दोबारा सोच के बताओ y की वैल्यू क्या होगी? क्यों 5 होगी? क्योंकि अगर ये x0 y0 है, ये y, अगर ये वैल्यू होगी यहाँ पर वैल्यू 5 होगी, क्योंकि रेडियस का जो डायरेक्ट है वो x0। दिस इज बेसिकली रेडियस। ये बाहर से 5 है, यहाँ पे हालांकि आपको रेडियस भी है, ये वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 से ये पॉइंट पिक्सल दूर होगा। Hence, by only using one parameter, मेरे पास बाकी सारी चीजें x की y को हमने 0 कर दिया, ठीक, सेंटर पॉइंट को 0 किया, उसकी वजह से x भी 0 हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट पे आगे इंक्रीमेंट होता रहेगा तो तब्दील होता रहेगा। y को हमने तस्वीर कर दिया स्टार्टिंग फ्रॉम द रेडियस, एंड y is super little as equal to radius। ये इक्वेशन में ब्लैसियम एल्गोरिथम के तहत ये चार चीजें हम अज्यूम कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाती है। सेंटर पॉइंट 0 कर दिया, सेंटर को 0 किया तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ x becomes 0, the value of y, first pixel of y becomes equivalent to radius, which I'm just doing here. Hence, their पास इन चार पैरामीटर्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली हर दफे हर प्रॉब्लम में सेम, सेंटर को 0 तस्वीर करेंगे, x उस वजह से 0 हो गया, y को हमने 0 से इसको उठाया है, y का हाल हो जाएगा रेडियस के। Hence, that problem is still आपको रेडियस होगा, then you would be using line calculated varying point. यहाँ पे बात समझ में आई? चलो ठीक। Now the only thing that is remaining is actually to make a particular problem. I think that in that class में जजमेंट सिंगल प्रॉब्लम, ठीक है?